Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the last chapter of second book that is Indian politics trends and development, and under this chapter we are discussing the recent developments in Indian politics, particularly after the year 1989. And in the previous class we have started our discussion regarding communalism, secularism and democracy. We have seen that in 1977 all the opposition parties have merged in one party, in single party, and that was Janata Party, and Janata government was also formed, but it was not a stable government. And we find that in the year 1980 this Janata Party was broken up in different parts, and we find that the supporters of Bharatiya Jan Sangh formed a new party in the year 1980, and that is the party Bharatiya Janata Party. And we find that initially the ideology of the party was broad, and it adopted the ideology of Gandhian socialism, but it was not a success. The first two elections, the election of 1980 and then the election of 1984, proved very undesirable. The results were highly undesirable for Bharatiya Janata Party. But what happened that after 1986, the party changed its ideology. Now it started to emphasize the Hindu nationalist element in its ideology. जो हिंदू nationalist element होते हैं उस पे इसने फोकस किया और हिंदुत्व को अपनी आइडियोलॉजी बनाई. ये हिंदुत्व के बेसिस पे इन्होंने हिंदूज को मोबिलाइज करना स्टार्ट किया. अब इस कॉन्टेक्स्ट में वी नीड टू नो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हिंदुत्व. जिस हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी है, उसका क्या, हम उसे क्या मीन करते हैं. ओके, तो first of all, we must understand that Hindutva and Hinduism are not. First of all, we must understand the difference between Hindutva and Hinduism. Hindutva is not Hinduism. Hinduism is a religion, but Hindutva is not a religion only. It's an ideology. It's an ideology which seeks to unite all who consider India as their fatherland. जो भी इंडिया को अपना फादरलैंड मानते हैं उन सबको ये यूनाइट करने की बात करते हैं. वो सब एक हैं जिनका भी इंडिया फादरलैंड है. और whoever believe that their ancestors were sons of the soil, वो सब एक हो जाएं. तो हिंदुत्व जो है वो इस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कि इंडिया जो है वो हमारी फादरलैंड है और हम सब उसके बच्चे हैं, और उस बेसिस पे, ऑन दैट बेसिस वी ऑल आर वन. ओके, इसमें कोई कास्ट का डिफ्रेंसिएशन नहीं है. कास्ट के लाइंस पे किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं करता है हिंदुत्व. ये यही मानता है कि जो भी, चाहे वो अपर कास्ट जिसको हम कह रहे हैं या लोअर कास्ट जिसको सोसाइटी कहती है, सबको यूनाइटेड होकर रहना है. जो भी इंडिया में रह रहे हैं, जो भी इंडिया को अपना फादरलैंड मान रहे हैं, वो सब जो है वो एक है. और ये जो हिंदुत्व टर्म हम देख रहे हैं, दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय वीर सावरकर. उन्होंने ही इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था, और इसका मीनिंग यही है कि कल्चरली
जो इस रीजन में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनके कल्चरल यूनिटी को वो डिपिक्ट करता है. सो वी विल सी the believers of Hindutva, they argue that a strong nation can be built only on the basis of a strong and united national culture. अगर हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के फॉर्म में सामने रखना चाहते हैं, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं, तो वो तभी बन सकता है जबकि उनका एक यूनाइटेड नेशनल कल्चर होगा. और ये जो यूनाइटेड नेशनल कल्चर है, वो कौन सा कल्चर है? वो हिंदू कल्चर है. सो हिंदुत्व इज, वी कैन से इट इज मोर associated with the cultural aspect of the region which is called India. जो हमारा कंट्री है उसके जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उस पे इसका फोकस है, और उस कल्चर के ही बेसिस पे हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के फॉर्म में सामने ला सकते हैं. And that is why the BJP is considered as a rightist party. Rightist mean those parties which want to conserve, which want to preserve the culture. जो पीछे की चीज़ें हैं उनको वो कंजर्व करना चाहते हैं, उनको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं. तो उसी के बेसिस पे उनका कहना है कि हमारा कंट्री स्ट्रांग बन सकता है, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था. एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी इन दिस गवर्नमेंट अ न्यू मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री इज फॉर्म्ड. आयुष जो मिनिस्ट्री बनी है वो हमारे एंशिएंट कल्चर से ही उनको ही वो प्रिजर्व कर रही है. फिर योगा का जिस तरह से रिवाइवल हुआ है, आयुर्वेदा का जो रिवाइवल हुआ है, वो सब हम उसी एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर अभी अंडर द रूल ऑफ द बीजेपी. तो ये है कॉन्सेप्ट बीजेपी के हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसका यही मतलब होता है. कुछ चीज़ें जो हमें बिल्कुल समझ में ध्यान में रखनी है. एक तो इन्होंने फादरलैंड का कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो सभी क्या करेंगे, इंडिया को अपना फादर मानेंगे, पितृभूमि है ना. जो भी लोग हैं वो सभी दे विल एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादर. और नॉट ओनली फादर, साथ ही साथ उसको पुण्य भू भी कहते हैं, मतलब होली लैंड है. ये बहुत ही होली लैंड है, ये हमारा फादर लैंड है. और यहाँ की जो कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कल्चर थी कि उसी के बेसिस पे हम अपने कंट्री को आज भी आगे बढ़ा सकते हैं, आज भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं. सो दिस इज हिंदुत्व. And now we will see some developments occurred in the period of in this year. We are talking about the year 1986. 1986 के समय में दो मेजर डेवलपमेंट हुए थे, और इन दो मेजर डेवलपमेंट्स के कारण हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी का जो सपोर्ट बेस था उसको एक एजेंडा मिला, एक प्रोग्राम मिला, एक मुद्दा मिला, और जो कि उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेस बन गया. इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस ईयर में हुआ, 1986 में हुआ, वो शाह बानो का केस था, जो कि 1985 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था. एक्चुअली इसमें ये था कि 62 इयर्स की एक डिवोर्सी मुस्लिम वुमेन थी. उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था कोर्ट में अपने मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड से, बिकॉज शी वॉज अ डिवोर्सी एंड शी वॉज एंटाइटल्ड टू गेट दिस मेंटेनेंस. उसको नहीं मिल रहा था मेंटेनेंस, तो उसने ये केस फाइल किया था कि उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए. शाह बानो केस के नाम से ये जाना जाता है. यू जस्ट कंसिडर द एज ऑफ द वुमेन, शी वॉज 62 इयर्स ओल्ड. ओके, तो इसमें जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट शाह बानो के फेवर में दिया कि यस, शी
इज एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। तो ये जो साहबानों का केस होता है, इसमें मेंटेनेंस की बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि साहबानों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बट इसको जो मुस्लिम कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने ये समझा, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे, उनका ये व्यू हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस तरह के मेंटेनेंस की कोई बात नहीं की गई है। तो उनका हर धर्म का जो पर्सनल लॉ होता है, हम उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, लाइक मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पर्सनल लॉ से होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। वी आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल मैटर्स में हमारे अपने अपने जो रिलीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा उसके जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारा काम चलता है। जैसे हिंदुओं का जो बहुत स्कैटर्ड था, सबको एक करके हिंदू कोड बिल बनाया गया, तो अब उसी के अकॉर्डिंगली हमारा सारे जो भी मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन के जो भी केसेस हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। इसी तरह से मुसलमानों का भी उनका अपना पर्सनल लॉ है। तो उस पर्सनल लॉ में ये कहा गया था कि मेंटेनेंस की कोई बात नहीं थी। बट साहबानों का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों को मेंटेनेंस का राइट दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके हम देख रहे हैं एज, उस औरत की एज है 62 ईयर्स। अगर वो उस एज में उसको डाइवोर्स किया जा रहा है और सी इज़ नॉट गेटिंग द मेंटेनेंस, तो हाउ विल सी लीड हर लाइफ? तो ये उसका राइट है कि उसको मेंटेनेंस मिले। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने इसको गलत माना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीडर्स थे, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि एक कांग्रेस की जो एक छवि थी, जो एक इमेज था, वो था कि वो मुस्लिम वोट उसके लिए बहुत मायने रखते थे। मुस्लिम वोट्स उसके लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी, हम इसको खामी कहेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकनेस, लूप होल ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये वोट पॉलिटिक्स पे चलती है। एंड इसके कारण इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो वही हुआ, राजीव गांधी पर प्रेशर था और उन्होंने एक ऐसा लॉ, एक ऐसा एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। 1986 में ही उन्होंने एक एक्ट पास करवा दिया पार्लियामेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट को तो मेजॉरिटी मिली होती है लोकसभा में, और अगर राज्यसभा में भी उसकी मेजॉरिटी है तो फिर कोई भी बिल पास कराना गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल आसान सी बात होती है। तो उन्होंने ये बिल पास कराया जिसको हम कहते हैं मुस्लिम वुमेन This is Muslim Women Protection of Rights on Divorce. ये लॉ एक्ट बन गया कि ठीक है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 वाज फॉर्म्ड। और ये जो एक्ट बना, इसने क्या किया, इसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि एक जजमेंट, एक जने के लिए जब जजमेंट होती है तो दैट इज फॉर एवरीवन। अगर साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि साहबानों को मिलना चाहिए मेंटेनेंस, तो दैट इज फॉर ऑल द मुस्लिम वुमेन। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स होने पर अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उसको इस एक्ट ने नलिफाई कर दिया।
कैसे नलीफाई किया कि इस एक्ट में ये कहा गया कि जो मुस्लिम वुमेन है वो उनको मेंटेनेंस मिलेगा अपने हस्बैंड से, लेकिन वो जो मेंटेनेंस मिलेगा वो एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है जिसको इद्दा कहते हैं। उस पीरियड में जब तक कि वो अपने इसको ऑब्जर्व कर रही है, जब तक कि वो हस्बैंड के जो का डेथ हुआ है उसके जो मॉर्निंग का पीरियड चल रहा है उसी को हम इद्दा कहते हैं। बस उस पीरियड तक ही उसको वो मेंटेनेंस मिलेगा। और ये इस इद्दा की जो पीरियड होती है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये काफ़ी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। मैक्सिमम कभी किसी कंडीशन में ये 3 मंथ्स हो सकता है, किसी कंडीशन में ये 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स हो सकता है। तो बस उसी पीरियड में उसको मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है। और जब इद्दा की पीरियड ख़त्म हो जाती है देन उसके बाद उसकी मतलब उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो ये जो लॉ बना इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को उल्टा कर दिया। ये इसको हम एक रिग्रेसिव लॉ कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव एक्ट एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया उसको इसने ख़त्म कर दिया। और ये इसके अगेंस्ट काफ़ी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट है। इसके अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन जो थी, मुस्लिम्स के ऑर्गेनाइजेशन, हर तरफ काफ़ी जिसको हम कहेंगे कि प्रोटेस्ट हुआ, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई। लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा कुछ उस समय तो नहीं हुआ। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि बीजेपी जो कि पार्टी अभी तक एक हिंदुत्व के बेसिस पे जो पार्टी फॉर्म हो चुकी थी उसको एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, एक बहुत बढ़िया इशू मिला जिसको कि जिसके जिस इशू पे वो लोगों को मोबिलाइज कर सकती थी, जिस इशू पे वो कांग्रेस का ये चेहरा दुनिया को दिखा सकती थी कि ये किस तरह की अपीजमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। ओनली देयर पर्पस इज ओनली टू अपीज द मुस्लिम कम्युनिटी। दे आर नॉट कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ द वुमेन, कंडीशन ऑफ द मुस्लिम वुमेन। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुस्लिम वुमेन की क्या कंडीशन है। वो सिर्फ अपनी वोट पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके प्रेशर में आकर के एक ऐसा लॉ बनाते हैं जो कि औरतों के राइट्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट जाती है। तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत ही जिसको हम कहेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, और उसने इसको काफ़ी यूज़ किया, बहुत बढ़िया से यूज़ किया। और एक अपना एक जो सपोर्ट बेस जो थी वो बीजेपी की बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मैटर हुआ 1986 में। और दूसरा मैटर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है, जहाँ से हम देखते हैं कि जो अयोध्या का जो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, जिसका जो कल्मिनेशन था वो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का टूटना था, उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो इसी 1986 में ही होती है। एक्चुअली जैसे कि हम जानते हैं अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद है ना। अब ये जो बाबरी मस्जिद है वो किसने बनवाया था? ये बाबरी मस्जिद बाबर, जो कि इंडिया में मुगल एम्परर थे जिन्होंने मुगल रूल को स्टार्ट किया। तो बाबर जो थे उनका जनरल था मीर बाकी। मीर बाकी ने इस बाबरी मस्जिद को बनवाया था 16वीं सेंचुरी में। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया गया वो एक्चुअली वहाँ पर लॉर्ड राम का टेम्पल था, क्योंकि अयोध्या जो है वो राम की जन्मभूमि है। हिंदूज के लिए अयोध्या जो है वो बहुत ही एक रिलीजियस प्लेस है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भगवान राम का वो बर्थ प्लेस है। और जिस जगह पे वो बाबरी मस्जिद बनी, मीर बाकी ने जहाँ पे बनाया, एक्चुअली वहाँ पर इनका राम भगवान का मंदिर था, और एक्चुअली वही बर्थ प्लेस था वहीं पर, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हिंदुओं का कहना मानना है कि वहीं पर वही बर्थ प्लेस था, वहीं पर भगवान राम का मंदिर था। उस मंदिर को डिमोलिश करके ये मस्जिद बनाई गई। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे, उस समय तो 16वीं सेंचुरी में कोई विवाद नहीं हुआ,
बट आगे चल के ये मैटर जो था, क्योंकि 16th सेंचुरी जो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी, उसमें न तो किसी तरह के हम सेक्युलरिज्म की बात कर सकते हैं, न किसी तरह के रिलीजियस फ्रीडम की बात कर सकते हैं, न डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। तो वो पीरियड ही दूसरा था, वो टाइम ही दूसरा था, उस समय जो कुछ भी हुआ। लेकिन ये चीज़ जो थी वो थी, मन में रह गई हिंदूज के, कि जो ये बाबरी मस्जिद बनी है वो इस तरह से हमारे राम टेम्पल को डिमोलिश करके बनी है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मॉडर्न टाइम आता गया, चीज़ें जो हैं वो ब्रॉड होती गई, तो ये मामला जो है ये कोर्ट में जाता है। ठीक है, ये डिस्प्यूट जो था जिस कि राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाया गया है, ये मामला कोर्ट में जाता है और बहुत सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता है, फैजाबाद की कोर्ट में। और इसके बाद मामले की कोई भी मतलब अल्टीमेट एंड पे नहीं पहुंच पाते हैं, कोर्ट में भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पाती है जिसको कि एक्सेप्ट किया जा सके। तो आखिर क्या होता है कि लेट 1940s में मॉस्क को लॉक कर दिया जाता है कि वहाँ पर कुछ भी, कोई भी पूजा वूजा कुछ नहीं होगी, बिकॉज वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन गया था। इसलिए कोर्ट के वर्डिक्ट से इसको 1940s के लास्ट में उसको लॉक कर दिया गया कि अब यहाँ कुछ भी, कोई पूजा कुछ भी नहीं होगी। ये तो लॉक था। अब क्या होता है, 1940 से लेकर के 1986 तक ये लॉक रहा। 40 के लास्ट डिकेड में, लास्ट ईयर्स में ये लॉक हुआ था। 1986 तक ये लॉक रहा। लेकिन 1986 में क्या हुआ कि फैजाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसको हम कहेंगे कि बिल्कुल भूचाल लाने वाली वो ऑर्डर थी। क्योंकि उस कोर्ट का ऑर्डर था कि जो बाबरी मस्जिद के जो प्रेमाइस है उसको अनलॉक कर दिया जाए, ताकि हिंदू जो हैं वो जहाँ पर वो मानते हैं कि राम की जन्मभूमि है, जहाँ पर वो मानते हैं कि राम का मंदिर था, वहाँ पर वो जाके पूजा कर सके। ये जो फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट था वो उसके कारण मतलब जो भी स्टार्ट हुआ, जो प्रॉब्लम्स हम आज तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आई, इतने राइट्स हुए, इतने सारे लोगों की जाने गई, तो एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट जजमेंट ओनली कि मॉस्क को खोल दिया जाए ताकि हिंदू वहाँ पे पूजा कर सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो वर्डिक्ट था, इसके बाद से जो हम देखते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद में मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है दोनों साइड से। एक तरफ हिंदूज, दूसरी तरफ मुस्लिम्स, दोनों ही का ही मोबिलाइजेशन हो जाता है। क्योंकि जब तक वो लॉक्ड था तब तक मैटर शांत था, न तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी प्रॉब्लम्स तो दोनों कम्युनिटी में थी। दोनों को लग रहा है कि हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप है और वहाँ पे पूजा नहीं हम कर पा रहे हैं, बट फिर भी शांति थी। बट जैसे इसको ओपन किया गया वैसे ही हम देखते हैं कि मोबिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे जो एक तरफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द अदर हैंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी के जो लोग थे उनको वो मोबिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये लोकल डिस्प्यूट था, मैटर फैजाबाद कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ये एक लोकल डिस्प्यूट था, लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोकल डिस्प्यूट जो था वो एक नेशनल क्वेश्चन में इमर्ज कर जाता है। और इसके साथ ही कम्युनल टेंशन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और इस मौके का, इस सिचुएशन का बीजेपी जो है वो पूरा का पूरा फायदा उठाती है। बीजेपी इसको अपना इलेक्टोरल और पॉलिटिकल मैटर बना लेती है। उसके लिए मतलब वो तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे आ ही चुके थे और उनको एक तो साहबानों के कारण एक ये मौका मिला कि जिसको हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को बेनकाब करने का एक मौका मिला। दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू रिवील द रियल फेस ऑफ कांग्रेस, कि किस तरह से वो दे अपीज द माइनॉरिटीज,
है ना, उसको अपीज करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी प्रिंसिपल इज नथिंग फॉर देम। तो इस तरह की चीज़ें आई। फिर ये फैजाबाद हाई कोर्ट का मैटर, तो ये चीज़ें जो होती गई, ये बीजेपी को बढ़ने का मौका मिलता गया। और हम देखते हैं कि बीजेपी विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे जो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे वो बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं इस समय में। और इन सब के साथ मिलकर के बीजेपी जो है वो बहुत सारे मोबिलाइजेशन के लिए प्रोग्राम्स करती है। इसी में एक कार सेवा स्टार्ट होती है। कार सेवा इज कर जो होता है वो क्या होता है, हिंदी में हाथ को हम लोग कहते हैं कर। कार सेवक्स जो हैं वो वहाँ पहुँचने लगते हैं कि हम अपने हाथों से मेहनत करके बाबरी राम टेम्पल को बनाएंगे। तो इस तरह से लोगों का मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे स्टार्ट होता है और कम्युनल वायलेंस भी होना स्टार्ट हो जाता है कंट्री के अंदर। बहुत मेजर तो नहीं बट छोटी मोटी घटनाएं जो है वो शुरू हो जाती हैं। और इसी में एक बीजेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट होता है और वो अपनी पब्लिक सपोर्ट बेस को वो बढ़ाना चाहती थी और उसके लिए उसने एक बहुत ही मैसिव मार्च स्टार्ट किया जिसको हम कहते हैं रथ यात्रा। ये उन्होंने सोमनाथ से स्टार्ट किया था और अयोध्या में यूपी तक जाना था उनको। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो रथ यात्रा में रथ में बैठ के वो यात्रा स्टार्ट किया उन्होंने अपने पूरे दल बल के साथ। सोमनाथ से स्टार्ट हुआ और इनको जाना था यूपी के अयोध्या, लेकिन जब ये बिहार पहुंचते हैं तो वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट होती है और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया था। तो इस तरह से ये मैटर जो है वो धीरे धीरे काफ़ी पेचीदा होता जा रहा था और इसका जो कल्मिनेशन हम पाते हैं वो यही होता है कि दिसंबर के 1992 में जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इस बात की सपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ पर मंदिर बननी चाहिए। मस्जिद जो है, जैसे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था वैसे मस्जिद को तोड़ के अब मंदिर बनाना होगा। ठीक है, तो जो लोग इस तरह के चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने वही कार सेवा को ऑर्गेनाइज किया कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे और हम अपने हाथों से सर्विस करके, हम अपने हाथों से काम करके क्या करेंगे कि राम टेम्पल को बनाएंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक द राम टेम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डेमोलिश द स्ट्रक्चर विच वाज देयर, दैट इज बाबरी मॉस्क, है ना। तो ये इस तरह से चीज़ों का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो इस तरीके से हो रहा था और पूरी कंट्री में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी टेंस थी। खास करके अगर हम देखें तो अयोध्या में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई पड़ी थी और इस बात की पूरी आशंका थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और दंगे भड़क सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो थी वो मतलब वो एक एप्रीहेंशन जो था वो था। और इसी समय में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी स्टेट को, कि वो इस बात का ध्यान रखे कि जो डिस्प्यूटेड साइट है, डिस्प्यूटेड साइट कौन सा हुआ, वही जो बाबरी मॉस्क वाला साइट है, दैट इज डिस्प्यूटेड बिकॉज बोथ द कम्युनिटीज आर क्लेमिंग कि ये उनका प्लेस ऑफ वर्शिप है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिस्प्यूटेड साइट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो डिस्प्यूटेड साइट है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूटेड साइट। क्योंकि जो सिचुएशंस हो रहे थे उसमें ये इस बात को अप्रहेंड किया जा रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए दैट इज द रीजन कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डिस्प्यूटेड साइट को जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहना चाहिए वो, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाया। हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एट अयोध्या ऑन 6 दिसंबर 1992
और जब इतने सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो दे स्टार्टेड डेमोलिशिंग द मॉस्क, मॉस्क को वो तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तोड़ भी देते हैं। और इसी के साथ ये न्यूज़ जैसे ही फैलती है, इसी के साथ हिंदू मुस्लिम का जो क्लास है वो कई पार्ट्स में स्टार्ट हो जाता है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। 1993 में जो हम पूरी दुनिया देश ने इसको झेला, मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके पीछे, जिसके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ माना जाता है, ये इसी का कॉन्सिक्वेंस था। इस बाबरी मस्जिद के टूटने का ही वो सब कुछ, जो भी दंगे हुए, जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस सेंसिटिव इशू ओनली. So we will continue our discussion regarding this matter in the next class.